दुनिया के अहम ममालिक के रहनुमाओं के गज़ा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी गज़ा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। गज़ा मुआहदे पर अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दस्तखत किए। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। सदर ट्रंप ने कहा है कि मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ है। This is a monumental day. This is a monumental moment in the history of the world beyond the Middle East. We've all agreed that supporting Gaza must be done to lift up the people themselves, but we don't want to fund anything having to do with the bloodshed, hatred, or terror, as has happened in the past. And for the same reason, we're also agreed that Gaza's reconstruction requires that it be demilitarized and that a new, honest civilian police force must be allowed to create a safe condition for the people in Gaza. As I said earlier, I intend to be a partner in securing a better future. We're going to be working, you're going to be working with the United States, and we're going to make sure that the Middle East is going to be a safe and secure place. It's a very important place in the world. But the momentous breakthrough that we're here to celebrate tonight is more than the end of the war in Gaza. It's with God's help, it'll be the new beginning for an entire beautiful Middle East. From this moment forward, we can build a region that's strong and stable and prosperous and united in rejecting the path of terror once and for all. We want to get rid of the terror and get on to other things. There are many other things in life that are so good. In one sense, it's so horrible that it could have taken place, but in another sense, it's so beautiful to see a new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को अमन नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। ट्रंप सबसे ज़्यादा इस इनाम के मुस्तहक़ हैं। अमरीकी सदर ने सिर्फ अमन ही नहीं, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचाई हैं। Well, I would say today is one of the greatest days in contemporary history because peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who is genuinely a man of peace, who has relentlessly and untiringly worked throughout these months, day in and day out, to make this world a place to live with peace and prosperity. I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives, and today here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop
7 and today 8 wars. गजा में अमन के लिए मिस्र के शहर शर्म शेख में मुआहदे पर दस्तखत के मौके पर सदर ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर की कि भारत और पाकिस्तान बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत रद्दमल का इजहार करते हुए ये भी कहा कि हमने भारत के 7 तैयारे गिराए थे। India is a great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are, and they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दे दिया। शर्म शेख में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ मौजूद हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ मौजूद नहीं। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक उनका सलाम पहुँचा दें। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much. Do you want to say what you said to me the other day? Come, would you like to say what you said the other day? I think it was so nice. Please. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के शहर शर्म शेख में मुलाकात की। ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ गर्म जोशी से मुसाफा किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। अमरीकी सदर ने शहबाज शरीफ के अलावा उन तमाम दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की जो गजा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँचे। इससे पहले शर्म शेख के कांग्रेस सेंटर पहुँचने पर मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने गजा अमन कॉन्फ्रेंस से पहले फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम एलियोफ, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेज़, इंडोनेशिया के सदर, जर्मन चांसलर, स्पेन के वज़ीर आज़म, इटली की वज़ीर आज़म, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती और उनकी सिफारती और अखलाक़ी मदद जारी रखने का इआदा किया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िद्दान से भी मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शर्म शेख में गजा अमन समिट के मौके पर हुई। इसाक डार ने जंगबंदी के लिए अमरीका और तुर्की के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में देर पर अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की हिमायत की। इसाक डार ने कहा कि आलमी बरादरी को गजा और फ़लस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद जारी रखनी चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अमरीका से तिजारती मुआहदे से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने यह बात अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ज़ाना रॉबर्ट कैपरॉथ से मुलाकात में कही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीका से कामयाब टैरिफ मुआहदे पर इज़हार मुसर्रत किया और अमरीकी कंपनियों को तेल, मादनियात, ज़राअत और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं। निजी शोबे को मईशत की क़यादत करनी होगी। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के अरकान से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि हुकूमत कारोबार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने सिटी बैंक नुमाइंदों से भी मुलाकातें की जिसमें पाकिस्तान में इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ज़ाना इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मिले और इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से M6 मनसूबे के 2 सेक्शन की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। दौलत मुश्तरका के वज़राए ख़ज़ाना इजलास से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मालियाती इस्तेहकाम और इस्तेदाद कार बढ़ाने के इक़दाम की हिमायत की और मौसमियाती फाइनेंसिंग की अहमियत पर और लॉस एंड डैमेज फ़ंड फ़ाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया।
पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के पाकिस्तान के दाखिली मामलात से मुतालिक बयानात का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अफगान तर्जुमान पर जोर देते हैं कि वो अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर पर तवज्जो मरकूज़ करें। अफगान तर्जुमान ऐसे मामलात पर तबसरा ना करें जो उनके दायरे इख्तियार से बाहर हैं। मुल्क के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का उसूल आलमी सफारती ज़वाबित के मुताबिक इख्तियार किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को अपने दाखिली उमूर पर किसी बैरूनी मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तवक्को है कि तालिबान हुकूमत दोहा में आलमी बिरादरी से किए वादों पर अमल करेगी और तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। तालिबान हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की बजाय जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि धमकाने के साथ मुज़ाकरात की बात करने वाले अफगान तालिबान पहले धमकी पर अमल कर लें, उसके बाद मुज़ाकरात भी कर लेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर किसी मुल्क से हमला होता है तो जवाब का हक मिल जाता है। पाकिस्तान ने किसी अफगान शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया, दहशत गर्दों की पनागाहों को तबाह किया। अफगानिस्तान की सरजमीन मुख्तलिफ दहशत गर्द गिरोहों की पनागाह है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी पर कौन यकीन करेगा। आगे क्या लाएअमल है? क्या इसको सीज फायर समझा जाए और उसके बाद कोई मुज़ाकरात होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे? इस वक्त क्या स्टेटस है? इस वक्त स्टेलमेट है, कोई हॉस्टिलिटीज जो है एक्टिवली इस वक्त नहीं है, लेकिन फिजा जो है वो हॉस्टाइल है। अभी भी कोई हमारा राब्ता जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कतई तौर पे नहीं है। एज ऑन टुडे सिचुएशन टेंस है। रिजम्पशन जो है हॉस्टिलिटीज की किसी वक्त भी हो सकती है। वी कैनॉट लोअर आवर गार्ड्स। अफगान वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा दूसरे भी रास्ते हैं हमारे पास मगर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, तो क्या होगा आगे जाकर? अगर वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, साथ धमकी भी देते हैं, तो पहले धमकी पूरी कर लें, फिर उसके बाद मुज़ाकरात कर लें। सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त जो है एक कॉन्ग्लोमरेट बनी हुई है अफगानिस्तान इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज की बिलाश्तियाल जहरियत के खिलाफ वतन का दिफा करते हुए शहादत के रुतबे पर फायज 12 शोहदा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा, गवर्नर KP अस्करी और सिविल अफसरान और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अवाम उन बहादुर सपूतों के हमेशा कर्जदार रहेंगे जिन्होंने अफगान तालिबान हुकूमत और भारत की हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों की जाहिरियत के मुकाबले में अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर दिफा ने इस अज़म का अयादा किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज़ के खिलाफ किसी भी जाहिरियत के साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से बरतानवी हाई कमीशन जेन मैरियट ने मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाज़ों में इजाफे पर भी बात की गई। शेखोपुरा में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले पुलिस इंस्पेक्टर शहजाद नवाज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और अफसरान ने शिरकत की। IGP ने कहा है कि शहीद शहजाद नवाज जैसे पुलिस अफसरों पर हमें फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मजहबी तंजीम से मुज़ाकरात वाली बात दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता दोनों अतराफ से राबते ज़रूर हुए हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा है कि मजहबी तंजीम से कहा गया था कि लॉन्ग मार्च एहतजाज को ख़त्म करें, मगर फिर उसमें तशद्दुद शामिल हो गया। क्या वाकई कोई मुज़ाकरात हो रहे थे, और अगर हो रहे थे तो वो मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? मुज़ाकरात वाली बात तो दुरुस्त नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अलबत्ता राब्ते ज़रूर हुए हैं। कुछ लोगों ने ख़ुद उनसे रब्ता किया और कई लोगों के साथ उन्होंने भी रब्ता किया। मेरे साथ भी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब उनके हैं जो कि KPK के उनके सरबराह है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे ये ज़रूर कहा गया इस रब्ते में कि आप इस एहतजाज या लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दें। इसमें जो है बावजूद जो है वो कामयाबी नहीं हुई और इसमें तशद्दुद जो है वो दाखिल हो गया। तो ये राब्ता ज़रूर हुआ उनसे
और उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर की गई कि वो इसको कॉल ऑफ कर दें। लेकिन मुज़ाकरात जो है वो उसकी एक वजह ये भी है कि कोई मुतालबात ही नहीं थे। वो सिर्फ ये लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद आना चाहते थे और इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की एक फ़ॉरेन एम्बेसी जो है वहाँ पे वो अपनी याददाश्त पेश करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी कि उनको इस्लामाबाद तक मार्च करने दिया जाए या इस्लामाबाद में वो दाखिल हों। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुकूमती उम्मीदवार सुहेल आफरीदी 90 वोट हासिल करके वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अपोजिशन ने इंतखाबी अमल को गैर आइनी करार देते हुए बॉयकॉट किया। नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना था कि अफगान पॉलिसी पर नजर सानी करना होगी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवामी नुमाइंदों से मुशावरत लाजमी है। रसूल दावड़ की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू होने से कबल ही अपोजिशन ने इंतखाब को गैर आइनी करार देते हुए बाइकाट कर दिया। तो मेरे ख्याल में कोई जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। क्यों आप लोग खुद इसको डिस्प्यूट बना रहे हो? इतना नंबर है आपके पास, तो आज नहीं 4 दिन बाद ये इसी में इलेक्ट हो और आईनी तौर होगा। तो मेरा ये ख्याल है ये गैर आईनी इक़दाम है। अपोजिशन के बाइकाट के बाद स्पीकर ने रूलिंग देते हुए वज़ीर आला अल-यमीन गंडापुर के इस्तीफे को दुरुस्त करार दिया और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू किया। जनाब मोहम्मद सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक हो जी। वज़ारत आला के लिए नामजद उम्मीदवार को वोटिंग के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान लाबी नंबर 1 में गए। सुहेल अफरीदी को ऐवान में मौजूद 90 मेंबरान ने सुहेल अफरीदी को कायद ऐवान मुंतखब किया। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि इनके खानदान में कोई सियासतदान नहीं। जिस दिन बानी पीटीआई ने कहा वो ओहदा छोड़ देंगे। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊँ, बाजुओं पर अपनी यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत करके पहुँचाऊँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवामी नुमाइंदों से मुशावरत लाजमी है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हलफ लेने के लिए स्पीकर ने समरी गवर्नर को भेज दी, जबकि स्पीकर ने वज़ीर आला से फौरी हलफ लेने के लिए अदालत से भी रुजू कर लिया। नादिया सबूही, कैमरामैन तारिक अली और रिजवान शेख के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़, पेशावर। खेल के मैदान से खबर दें। लाहौर में पाकिस्तानी स्पिनर्स ने जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को मुश्किल में डाल दिया। मेहमान टीम के 6 खिलाड़ियों को 216 रन्स पर पवेलियन पहुंचा दिया। नुमान अली ने 4 विकेटें हासिल की। इससे पहले पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 378 रन्स बनाकर आउट हो गई। सलमान अली आगा ने 93 और मोहम्मद रिजवान ने 75 रन्स बनाए। पाकिस्तान ने दूसरे दिन का आगाज 313 रन्स 5 खिलाड़ी आउट से किया। मोहम्मद रिजवान ने 62 और सलमान अली आगा ने 52 रन के साथ इनिंग्स आगे बढ़ाई। रिजवान 362 के स्कोर पर 75 रन बनाकर आउट हो गए। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान छठी विकेट पर 163 रन की शराकत रही। सलमान अली आगा बदकिस्मत रहे, अपनी सेंचुरी मुकम्मल न कर सके। वो 93 के इनफरादी स्कोर पर आउट हो गए। बकिया बैटर्स स्कोर में 16 रन का ही इजाफा कर सके। पाकिस्तान टीम 378 रन बनाकर आउट हो गई। मोतसामी ने उम्दा बॉलिंग करते हुए 6 खिलाड़ियों को आउट किया। 2 विकेटें सोबाराइन ने हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने दिन के इख्तिताम पर 6 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना लिए थे। डिजोज़ई 81 रन बनाकर नॉट आउट हैं। उनके अलावा रिकल्टन ने 71 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका को पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए अब भी 162 रन दरकार है। पाकिस्तान की जानिब से नौमान अली ने 4, सलमान अली आगा और साजिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। इंडस अस्पताल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम 5वें कॉर्पोरेट टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप आइबेक्स 11 ने जीत ली है। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम की और शहरियों से अस्पताल को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात देने की अपील की। लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट देखिए। इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट लाहौर में होने वाली टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप में 8 कॉर्पोरेट टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका मकसद इंडस अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज के लिए फंड्स इकट्ठे करना था। चैंपियनशिप का फाइनल एबेक्स 11 और स्केन स्कूल्स के दरमियान हुआ, जिसमें दिलचस्प मुकाबले के बाद एबेक्स 11 ने मुकाबला अपने नाम किया।
टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और मीडिया से गुफ्तगू में शहरियों से अपील की कि वो इंडस अस्पताल को दिल खोलकर एहतियात दें। एक शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जहाँ मेडिकल की ज़रूरत होती है वहाँ पे फ्री इलाज किया जाता है, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि इस अदारे को जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। फाइनल के इख्तिताम पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नॉर्थ इंडस हॉस्पिटल तारिक अजीम ने भी पाकिस्तानियों से अपील की कि वो इंडस अस्पताल को एहतियात दें ताकि हम मिलकर मुल्क को एक सेहतमंद पाकिस्तान बना सकें। 60 लाख से ज़्यादा लोगों का साल में मुफ्त इलाज किया जाता है, तो ये सारा कुछ पॉसिबल होता है अवाम की सदकात और उनके ज़कात और उनके जो डोनेशंस हैं उससे। मुंतज़मीन का कहना था कि चैंपियनशिप से हासिल होने वाले तमाम फंड्स इंडस अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज के लिए वक्त किए जाएंगे ताकि हर मरीज को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शर्वानी, जियो न्यूज़, लाहौर।